Palki, one of the usually popular festivals celebrated in Maharashtra, witnesses lakhs of pilgrims travelling thousands of kilometers. During their journey, these pilgrims halt at many religious places. With so many people gathering at one place, the locals face a tough time. पालकी के साथ लगभग 3-4 लाख लोग आते हैं और तकलीफ़ जो होती है वो पालकी जाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन के बाद तकलीफ़ शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं 3-4 लाख तो उनकी व्यवस्था नहीं होती टॉयलेट की वगैरह, तो जहाँ जगह मिलता है वहाँ वो लोग बैठ जाते हैं और वो लोग तो उतने मतलब पढ़े लिखे नहीं रहते, गांव के विलेज के लोग रहते हैं, इसकी वजह से उनको इतना ये भी नहीं रहता और वो उन्होंने सोचा तो भी वो कहाँ जाएंगे टॉयलेट के लिए, तो इधर उधर सब ये हो जाता है। इसलिए गांव के आजू बाजू में इतनी गंदगी फैलती है कि आप कितनी भी दवाएं मारेंगे कुछ भी करेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। Since there are no appropriate facilities for lavatory, these pilgrims resort to open lands, river banks or the nearby ponds for the same, thus resulting in polluted water and foul smell in the environment. We had the misfortune of going there, just prior to the major religious event there. Which is called as Palki Sohra, and where thousands of people had gathered in Pandharpur. And when we entered Pandharpur and we tried to approach the temple, what hit me very hard is the very, very foul smell. पालकी के दूसरे दिन वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं उनको बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ती है, जैसे कि जो गंदगी होती है, विष्ठा जो होती है, उसकी वजह से दुर्गंधी फैलती है, कामकाज में बहुत तकलीफ होती है। वही बैक्टीरिया, वायरल बैक्टीरिया की वजह से पानी दूषित होके जुलाब वगैरह इस तरीके से बीमारी बहुत बड़े पैमाने में देखे गए हैं। The excreta is home to several pathogenic organisms and they ultimately be responsible for the epidemics or the diseases that these people are prone to continuously. The government certainly does provide some facilities, but they are not sufficient. Hence, the fear of diseases are always lurking among the locals. जो ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है या फीकल मैटर रहता है, उसके साथ में काफ़ी सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स उनके कारण कुछ रोग फैलना शुरू हो जाता है। मानो जैंडिस है या टाइफाइड है या डिसेंट्री या डायरिया जैसे रोग है, वो फैलना शुरू हो जाता है, तो उसे कंटेन करना है। इसके लिए विकल्प के लोगों ने एक माइक्रोबियल कंसोर्शियम किया था डेवलप, और वो कंसोर्शियम से उन्होंने कुछ ट्रायल्स लिए थे जिसमें उन्हें काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले थे। With the help of Agarkar Research Institute based in Pune, Vikalp Technologies has developed a microbial consortium through intensive research. This microbial consortium not only destroys the pathogenic organism found in human excreta, but also kills the foul smell spreading in the environment. The institute has a history of over 60 years and mainly concentrated on on basic and applied science. In applied science, our focus is always on agriculture research and environmental research, including water and sanitation. Now we are also paying attention towards the research for the common man, particularly in the area of sanitation and development of newer technologies, low-cost technologies for human excreta treatment. We approach Vanrai, which is a NGO, well-known NGO run by a stalwart like Dr. Mohan Daria. So we approach him. We had made a small presentation of our approach, and he welcomed us thoroughly. And he said, "I will fully support you." वंदरी संस्था को लगा कि ये विकल्प टेक्नोलॉजी को हमें पूरा सहयोग देना चाहिए
जिस वक्त पंढरपुर की वारी निकलती है तो लाखों लोग ऐसे ही मलमूत्र विसर्जन करने के लिए बैठते हैं। काफ़ी दुर्गंधी पैदा होती है, मक्खियाँ आती है। तो अगर हम ये विकल्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो दुर्गंधी आएगी नहीं और मक्खियाँ भी नहीं होगी। Vikalp Technologies firstly figures out the most affected area and only then do they send their team. All the team members are well trained and well equipped. These people then spray the microbial consortium in those areas that are used by the pilgrims for lavatory purposes. ये हमारा काम 2006 में चालू हुआ और पहले हमने दो जगह पे किया, एक तो पंढरपुर और दूसरा बारामती। ये ऐसा 2 साल चलता रहा, 3 साल चलता रहा और उसके बाद अभी ये हमारा 5वां साल है। इसका फंक्शन है कि ये जो विष्ठा या जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ रहता है उसको विघटन करने में ये मदद करता है। और ये जो पाउडर जो हम डाल रहे हैं इसका इमीडिएट फंक्शन ये है कि वो जो गैसेस निकलती हैं उसमें से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी की वजह से आपको बदबू नहीं आती है। और ये टोटली फ्रेंडली है, जानवरों के लिए बहुत अच्छा है, पेड़ पौधों के लिए अच्छा है और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी अच्छा है। और इस पर एनवायरनमेंट पे कोई भी गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। The worst affected places due to human excreta are local lakes and ponds. Hence, these team give special importance to them, thus starting the spraying process early in the morning. The dedication for their work is admirable. For treatment, these people travel to places where common man would think twice before stepping in. With their effort, the team of Vikalp Technologies have not only solved the problems of locals, but also won many accolades. हा प्रकल्प 3-4 वर्षापासून जो राबवण्यात येतोय तेव्हापासून रोगराईला बऱ्याचशा प्रमाणात आळा बसलेला आहे। हे दुर्गंधी जे 8-10 दिवस ही दुर्गंधी राहायची, या दुर्गंधीपासून भी बरीचशा प्रमाणात मुक्तता झालेली आहे। तो आप जो कर रहे हो इतना बढ़िया है कि आप शायद कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि यहाँ के लोगों को उसका कितना फ़ायदा होता है। आप साफ़ सफाई करके जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे ये बीमार पड़ते हैं वो कम हो गए तो वो अच्छी बात है ना। सबसे गंदगी ये है, विष्ठा की गंदगी, अगर वो ख़त्म कर दिया आपने तो फिर बाकी का कोई टेंशन ही नहीं ना। बाकी प्लास्टिक है तो उठा सकते हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं कर सकता। Inspired by this initial success, Vikalp Technologies has put a step forward in research work, thus working towards making it a cost beneficial process. हम इसे कॉस्ट बेनिफिशियल प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कुछ कंटेंट फैसिलिटी में ये फिकल मैटर को ये विकल्प ARI कंसोर्शियम के साथ में अगर ट्रीट कर दे तो उससे एंड प्रोडक्ट होगा मीथेन। और ये मीथेन या बायोगैस जो है उसके कारण ये हम अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। फिकल मैटर से हमें बायोगैस मिलेगा जो हम एनर्जी के कारण यूज़ कर सकते हैं। आपका जो काम है वो सबसे अच्छा काम है। सब अच्छे काम करते, खाना देना पीना देना सब लोग करते, लेकिन ये काम कौन नहीं करता। इस तरह का काम पूरे देश में होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत किया है
और ये टेक्नोलॉजी गुजरात में भी यात्रा के केंद्र पर काम करने वाली है। The small step taken by Vikalp Technologies definitely needs and deserves the support of government and private organization so that this noble cause be given a new life.